All right, good morning, students. Today we are continuing with Political Science Chapter 4, Part 4. This is the last part for our chapter, Social and Political Movements. Our objective for today is students will be able to take notes on environment and consumer movements in India. कल हमने विमेन और लेबर मूवमेंट्स इन दोनों टॉपिक्स पे हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे. Today we are going to cover points on environment and consumer movements. All right. Now, so students, as usual, keep your pens and notebooks ready. You need to take a lot of notes. First listen to the explanation of the points and then take down the notes on the screen. Alright. So the two things we are learning today are environment movements. Environment के related कौन से movements हुए India में, that's what we're going to look at. And consumer movement, what exactly is a consumer and ये movement ज़रूरी क्यों हुआ? Why did this movement start in India? We're going to learn about that. So let's move on to the first topic, environment movements. Now, environment movements in India started post-independence with the rise of industrialization. Just like labor movements which started post-independence due to industrialization, environment movements भी उनकी वजह से शुरू हो गए. Alright, क्यों? क्योंकि industries in general they need a lot of resources, right? उन industries को अगर चलना है तो they need resources like water, they need resources like trees and a whole lot of other things from nature. So industries require a lot of natural resources, a lot of raw material, जिसे हम geography में raw material बोलते हैं. Alright? तो रॉ मटेरियल को पाने के लिए ऑब्वियसली जंगलें काटी जाती है या फिर नदियों का पानी यूज़ किया जाता है, उसमें पोल्यूशन हो जाता है. ऑलराइट, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रीज के बढ़ने की वजह से एनवायरमेंट मूवमेंट्स आने लग गए इंडिया में. नाउ सेकंड पॉइंट, दे कवर टॉपिक्स सच एज प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों का काटना, प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज एंड रिड्यूसिंग यूजेज ऑफ केमिकल्स. ऑलराइट, कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं ये एनवायरमेंट मूवमेंट्स? प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ऑलराइट, अलग अलग तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, उनका ध्यान रखना, उनके ऊपर नज़र रखना. ऑलराइट, प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू कि पेड़ों का काटने को रोकना. प्रोटेक्शन ऑफ वाटर बॉडीज, नदियों का पानी जो यूज़ होता है फैक्ट्रीज में या इंडस्ट्रीज में वो ज़्यादातर पल्यूट हो जाता है या फिर उस पानी में बहुत सारे वेस्ट केमिकल्स, बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज का डाल दिया जाता है. ऑलराइट, so to protect these water bodies is another aim of environment movements and reducing usage of chemicals. alright, chemicals यानी अभी इंडस्ट्रीज अगर चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होंगे, निकलेंगे. ऑलराइट, तो उन केमिकल्स का यूज करना बंद करना. ऑलराइट, इवन इन जनरल एग्रीकल्चर यू मस्ट बी नोटिसिंग देयर आर फार्मर्स हु यूज a lot of pesticides, a lot of chemicals, and it doesn't benefit them as much. So reducing the usage of those chemicals are just a form of environmental movement. Alright. Now the Chipko movement and the Narmada Bachao Andolan are a few examples of environment movements in India. अभी तुम ये जो pictures देख रहे हो तुम्हारे सामने, this is of the Narmada Bachao Andolan, where the people of living in the Narmada Valley, the tribal people living in the Narmada Valley, they were protesting against the government who were building डैम्स ऑन द नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर पे डैम बनाने से वो मना कर रहे थे. क्यों? क्योंकि डैम बनाएंगे तो उनके रहने का जगह चला जाएगा, उनके गांव मतलब पानी के अंदर बह जाएंगे. ऑलराइट, और नर्मदा का पानी भी पल्यूट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. सो दैट जस्ट वन एग्जांपल ऑफ एनवायरनमेंट मूवमेंट इन इंडिया. एंड if you notice, environment movements in India have gained a lot of support at an international level. Alright, India as a country is very very diverse in its environment. अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के environment मिलेंगे तुम्हें. You can find dry, you can find trees, you can find coastal areas and a whole lot of other places. So these movements जो इंडिया में चलते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको सपोर्ट मिलता है. क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ऑलराइट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है. ऑलराइट, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे सपोर्ट किया जाता है. सो द एनवायरनमेंट मूवमेंट्स इन इंडिया हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. सो दैट वाज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट मूवमेंट. स्टूडेंट्स, यू कैन नाउ पॉज द वीडियो, टेक डाउन द नोट्स ऑन योर स्क्रीन एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now let's talk about consumer movements. Now this one's fairly simple. Consumer का मतलब क्या है? A person who buys a product or uses a service. Alright, that person is a consumer. Alright. Now the consumer movement began in 1986 after the introduction of the Consumer Protection Act. Consumer movement कब शुरू हुआ? जब गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हाँ, हमारे जो बायर्स है, जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या सर्विसेज का यूज़ करते हैं, उनके भी कुछ हक होते हैं, उनके भी कुछ ज़रूरतें होती हैं. Alright,
So they made an act called the Consumer Protection Act in 1986, जिसके अंदर इन कंज्यूमर्स को थोड़े हक दिए जाते हैं, थोड़े से राइट्स दिए जाते हैं जिसका वो यूज कर सके अपने बाइंग एक्सपीरियंस में. राइट नाउ व्हाट्स द कंज्यूमर एक्ट अबाउट? It aims to protect the aims and interests of the buyers and ensures that they get their fair due. Alright? बायर का जो इंटरेस्ट है कि उसको एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अच्छे प्राइस पे मिलना चाहिए. राइट? इट शुडंट बी ओवर चार्ज, या फिर उसका क्वालिटी या फिर उसके क्वालिटी के खराब होने की वजह से उसके जान को खतरा नहीं आना चाहिए. ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है. ऑलराइट? एंड इट एंश्योर्स दैट दे गेट देयर फेयर ड्यू. वो जितना पैसा भरते हैं उस पैसे का उनको फेयर यानी सही व्हाट डू यू कॉल इट, दे गेट देयर फेयर ड्यू यानी उनको सही अमाउंट मिले. ऑलराइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग अ चॉकलेट, जैसे अगर 1 रुपये का चॉकलेट है और मैंने दुकान वाले को 20 रुपये दिया, मैंने बोला उसको 20 चॉकलेट दो मुझे, तो वो मुझे 10 चॉकलेट नहीं दे सकता, बोलेगी कि नहीं नहीं ये तो 2 रुपये का चॉकलेट है. राइट? सो एंश्योरिंग दैट वी गेट अ फेयर ड्यू, उस प्रोडक्ट का जितना प्राइस है उतने का उतना ही मुझे, जितना पैसा मैं देता हूँ उतना ही मुझे वापस मिलना चाहिए. दैट इज ऑल व्हाट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट. राइट? नाउ it focuses on consumer problems such as adulteration, increased cost of items, fraudulent weights. Alright? तो कंज्यूमर के अलग अलग प्रॉब्लम्स भी होते हैं अलग अलग दुकानों में. ऑलराइट? फॉर एग्जांपल एडल्टरेशन. ऑलराइट? एडल्टरेशन यानी किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से मिला के उसको थोड़ा ख़राब करना. फॉर एग्जांपल दूध और पानी को मिलाना, हल्दी में लकड़ी का जो भूसा होता है उसे मिलाना. ऑलराइट? ये सारी चीज़ें एडल्ट्रेशन मानी जाती है. ऑलराइट? तो मतलब उन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को मिला के वो प्रॉफिट करना चाहते हैं कुछ दुकानदार, जो गलत काम है. ऑलराइट? सो दैट्स एडल्ट्रेशन. इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ आइटम्स, किसी की जगह पे उसके एमआरपी से ज़्यादा चार्ज करना. अभी कुछ कुछ रेस्टोरेंट, कुछ कुछ होटल होते हैं जहाँ पे जैसे पानी 20 रुपये का हो जाता है, या जो थम्सअप पहले 40 रुपये में मिलता है वो 80 रुपये या 100 रुपये में मिलता है. दोज आर डिफरेंट, दोज आर चार्ज अकॉर्डिंग टू अ सर्विस चार्ज, कन्वीनियंस फी और ये सब अलग अलग चीज़ें होती है. लेकिन अगर कोई नॉर्मल दुकानदार है जो लेट्स से पानी बेच रहा है और पानी 10 रुपये का है, तो वो तुम्हें 15 या 20 रुपये में नहीं बेच सकता. ऑलराइट? दैट्स अ कंज्यूमर प्रॉब्लम और ये एक्ट इसको रोकने की कोशिश करती है. फ्रॉडलेंट वेट्स, फ्रॉडलेंट यानी फ्रॉड, यानी जो नकली वेट्स होते हैं. ऑलराइट? मतलब लिखा रहेगा 1 किलो, लिखा रहेगा 1 किलो, लेकिन होगा सिर्फ 500 ग्राम. राइट? तो समझो कि किसी वेट पे या किसी वजन के स्केल पे, तुमने वजन का स्केल देखा होगा सब्जी मंडी पे. ऑलराइट? एक तरफ सब्जी लगाते हैं, दूसरी तरफ पे वजन रखते हैं. ऑलराइट? तो किसी वजन पे अगर समझो 2 किलो लिखा है, लेकिन उसने सिर्फ 500 ग्राम का कुछ तो डाला, सब्जी डाला, और उतने में वो वेट इक्वल हो गया. इसका मतलब ये है कि वो गलत वेट्स यानी नकली वेट्स यूज कर रहे हैं, नकली वजन यूज कर रहे हैं. ऑलराइट? तो वो फ्रॉडलेंट वेट्स का भी काम को रोकना इस मूवमेंट का एक एम था. नाउ इट इज ऑल्सो रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म सच एज टेलीविजन, रेडियो एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ठीक है? ये कंज्यूमर मूवमेंट जो है, तुम देखोगे नहीं कि लोग रास्ते पे उतर के कंप्लेन करते हैं. ये ज़्यादातर एक नियो सोशल मूवमेंट है. ऑलराइट? इसे एक नियो सोशल मूवमेंट कहेंगे क्योंकि दिस मूवमेंट मोस्टली स्टार्टेड ऑनलाइन. ऑलराइट? ऑनलाइन एज एन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. पहले टेलीविजन पे शुरू हुआ, जो तुम अभी साइड में पिक्चर देख रहे हो, जागो ग्राहक जागो. यहाँ पे टीवी पे एड्स आते रहते थे जहाँ पे लोगों को समझाते थे कि कैसे ऐसे मतलब लोगों से बचना है जो तुम्हें उल्लू बनाएंगे, या फिर ऐसे नकली वजन का यूज़ करेंगे, या फिर तुम्हें ज़्यादा दाम पे चीज़ों को बेचेंगे. तो जागो ग्राहक जागो ये गवर्नमेंट का एक स्लोगन था, एक प्रोग्राम था जो शुरू हुआ, जिसके वजह से ये जो कंज्यूमर के राइट्स है या फिर जो खरीदने वालों के जो हक है वो थोड़े स्ट्रांग हो गए. ऑलराइट? एंड ज़्यादातर वो पहले टेलीविजन पे होता था, रेडियो पे होता था, अभी सोशल मीडिया पे आ गया है. फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, तुम कहीं पे भी जाके देखो, कहीं ना कहीं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का तुम्हें थोड़ा सा तो एलिमेंट दिखेगा ही दिखेगा. राइट? जैसे कि फेसबुक पे अभी एड्स आते हैं कि नहीं ऐसे स्कैम से दूर रहो, या फिर यूट्यूब पे तुम्हें समझाएंगे कि स्कैम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो स्कैम प्रोडक्ट्स है, तो उनको खरीदो मत. ऑलराइट? you'll see a lot of this information available online now.
and that's how the consumer movement is currently evolving in India. All right, सारे consumers अभी smart हो गए, सबको पता है कि उनको कैसे खरीदना है, कितने दाम में खरीदना है, कौन सा क्वालिटी उनको मिलना चाहिए. All right, and this is simply due to the consumer movement. With that, students, we have reached the end of our lecture and explanation. This is the question I want you to answer for today. State whether the following statement is true or false. पहले true या false है इस statement को वो लिखो and give reason for your answer. अगर true है तो भी reason देना है, अगर false है तो भी reason देना है. Alright. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.